I will start my talk with a very simple question. What is opposite of success? So you said opposite of success is failure. After decades of experience, see, perhaps I am the senior most speaker today. After decades of experience, I tell you what, सक्सेस का अपोजिट फेलियर नहीं है. सक्सेस का अपोजिट रिफ्यूजल टू राइज है. प्लीज अंडरस्टैंड दिस. सक्सेस फेलियर इज जस्ट a step towards another success. The refusal of yourself to rise again is a real opposite of success. Be mindful of those things. I will give you certain examples from my own life to validate this point. मैं संदीप श्रीवास्तव, बेसिकली मैं डॉक्टर में प्रोफेशन हूँ, ऑर्थोपेडिक सर्जन बाय ट्रेनिंग हूँ, मेडिकल कॉलेज में प्रोफेसर हूँ, पिछले 4 दशकों से डीन रह चुका हूँ, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर रह चुका हूँ और आज आपके सामने ऐसे वाइस चांसलर एक प्रेस्टिजियस यूनिवर्सिटी जो कि ऑलमोस्ट 100 ईयर्स पुरानी है, आपके सामने आया हूँ. बट देन आई एम नॉट एन इन्फ्लुएंसर. I am neither a celebrity. I don't have millions of followers. I am a very ordinary person. But the ordinary person who refused to quit. आज सुबह से हम लोग ने देखा, everybody was about the resilience. I am again for the same. मैं आपको छोटी सी कहानी बताता हूँ. जहाँ से मैं आया बहुत छोटा शहर था, बहुत अच्छी खुश फैमिली थी. मेरे पापा डॉक्टर थे, my mother was a homemaker, and we have 5 siblings. 4 sisters and myself. And suddenly one day everything changed. My father died. Died at an age of mine when I was just like you, something around entering the second decade of my life, 20-21 years का रहा हूँगा. Homemaker mother, no source of earning, 4 daughters and 1 son. But she didn't yield it to the fate. She stood. She educated all of us. She empowered us. Resentfully, within a decade's time, all 5 of us were doctors. All 4 sisters were doctors, now practicing in USA. And I stand before you as a vice chancellor. That is what the power of resilience is. But the story doesn't end over at this point. Within 6 months of she getting her youngest daughter married, she passed away silently. As if कोई मिशन कंप्लीट हो गया हो उनके इस धरती पे. Friends, rising again softly is the first thing which I would say, which will help you to overcome any failure in your life. It's not necessarily कि आप बैंड बाजा बारात लेके अपना सक्सेस को सुधारें. Even doing something important very next moment which will help you to rise again is important. The success comes only with patience, and don't forget another important thing, purpose. Don't lose the purpose. So that is the first lesson learned. I was a medic. बहुत prodigy नहीं था, बहुत इंटेलिजेंट भी था. आज मेरे बैचमेट यहाँ पर बैठे हुए हैं. एंड नीदर आई वॉज अ टॉपर. आई लॉस्ट ऑल द गोल्ड मेडल्स बट बाय स्मॉल मार्जिन्स ऑलवेज. एक बुरी आदत थी, हॉस्टल में रहते थे. एग्ज़ाम के पहले जब भी किसी बैचमेट को कोई कंसेप्ट समझना होता था, वो घंटे 2 घंटे मेरे पास आ जाता था. मेरी सारी पढ़ाई हो चुकी है, केवल उतनी सी पढ़ाई करनी है जो कि एडवांस लर्निंग की बची है. एंड दिस चैप यूज्ड टू कम टू अस एंड यूज्ड टू कीप ऑन डिस्कसिंग द थिंग्स. एंड इन द मॉर्निंग आई यूज्ड टू रियलाइज, ओ माय गॉड, आई हैव मिस्ड समथिंग इंपॉर्टेंट. बट देन व्हाट हैपेंड? आई माइट हैव लॉस्ट गोल्ड मेडल्स बट आई अर्न प्लैटिनियम मेडल्स. वो लड़के जब पास हुए ना, जब वापस आके उन्होंने बोला वो क्वेश्चन आ गया और हमने फाड़ दिया पूरा पेपर, इट वॉज सच ए हैप्पी मोमेंट. एंड व्हाट इट डिड टू मी, that small informal teaching sessions converted my knowledge into wisdom. It didn't grow my knowledge into another knowledge, but it grew it into very good wisdom. And we became wise very soon. Friends, the 2 of yours and 2 of them, they together make 22. There is no other way of making 2 + 2 22. जब आप शेयर करने जाएंगे अपनी नॉलेज को, तभी वो नॉलेज मल्टीप्लाई होती है. पढ़ने से केवल ग्रो हो सकती है, मल्टीप्लाई नहीं होती. दैट इज द सेकेंड पॉइंट. I became an orthopedic surgeon, and you know, सर्जन बहुत सर्जिकल काम करना बहुत इंटेंसिटी का काम है. देयर इज ओनली 2 थिंग्स इन दी आफ्टर द सर्जरी, इधर इट इज सक्सेसफुल और इट इज नॉट सक्सेसफुल. ये समझना सर्जन्स का हमने सब कुछ सही करा, पेशेंट ठीक नहीं हुआ, दिस इज ए मिथ. पेशेंट ठीक नहीं हुआ मीन्स नो सक्सेस. सिंपल है. बट देन टू मेक ए सर्जरी सक्सेसफुल इट टेक्स लॉट ऑफ टॉल.
particularly when you are working with a very heterogeneous team. In the sense कि कई सर्जन्स होते हैं, सबके अपने अपने एक्सपीरियंस होते हैं. फिर हम लोग जहाँ एनवायरनमेंट में सर्जरी करते हैं वहाँ तो स्टूडेंट्स भी होते हैं, नर्सेज भी होती हैं, नर्सिंग स्टूडेंट्स भी होते हैं साथ में, और तो और अटेंडेंट्स भी होते हैं. सबको एक ही मिशन है, उस पेशेंट को ठीक करना. फिर जब सर्जरी करते होते टेबल पे पेशेंट लेटा हुआ होता है तो कोई छोटा होता है हाइट में, कोई लंबा होता है हाइट में, कोई लेफ्ट हैंडर होता है, कोई राइट हैंडर होता है. समझिए ना आप कितनी कॉम्प्लेक्सिटी होती है. अगर एक इंस्ट्रूमेंट गलती से पीछे से दे दिया और हमने ले लिया तो सारा ऑपरेशन फेल है. इसकी सक्सेस स्टोरी कैसे बिल्ड करते हैं? रात भर हम वो सर्जरी करते हैं. आप बोलेंगे पेशेंट तो सुबह ऑपरेट करने वाले, तो रात को क्या सर्जरी करते हो? मेंटल रिहर्सल. वी रिहर्स एवरी स्टेप, every incision, anticipate every complication. When we perform, perhaps I have done that surgery 10 times in the night. And as the reason, lot of people they come and say, आप बहुत fast surgery करते हो. No. It is in 11th attempt I am doing that surgery which I am performing. 10 attempts too slow कर चुका हूँ. So believe me, when you are working with intensity, practice makes you successful. Only practice behind the performance. प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस. आपने सब खिलाड़ियों को सुना होगा कि जितना पसीना तो उन्होंने टेस्ट क्रिकेट में नहीं बहाया है, उससे ज़्यादा उन्होंने प्रैक्टिस सेशन से बहाया है. सो दिस इज द थर्ड मंत्रा. डू प्रैक्टिस एंड यू विल एबल टू राइज अगेन वेरी नाइसली. मैं 41 ईयर्स की एज में मेडिकल स्कूल का डीन बन गया था. कंट्री में शायद मैं सबसे मेडिकल स्कूल का सबसे यंगेस्ट डीन रहा हूँगा, केवल 41 ईयर्स की एज में, जब लोग बाग एसोसिएट भी नहीं हो पाते हैं. बहुत खुश था. बट देन 41 ईयर्स की एज बड़ा नाजुक सी एज होती है. आपके बच्चे छोटे छोटे होते हैं, उनको टाइम चाहिए रहता है आपसे, आपकी फैमिली को टाइम चाहिए रहता है, ऑफिस को टाइम चाहिए रहता है, क्लिनिकल वर्क छोड़ना नहीं चाहते आप. सो आई स्टार्टेड वर्किंग फ्रॉम 8 AM till 10 PM एंड दैट टू सो मच ऑफ इंटेलिजेंस. माई वर्क वॉज नेवर कंप्लीट. होना क्या है? बर्नआउट हैपेंड टू मी ऑल्सो. एंड वन डे आई गॉट वेरी मच फ्रस्ट्रेटेड. मैं 9:30 बजे रात को अपनी टेबल से उठा फ्रस्ट्रेशन में और बाहर निकला. डीन चैम्बर और बाहर निकलने गेट तक कार तक जाने में लाइब्रेरी की स्टेयरकेस आती है. वहाँ दो आप जैसे यंग कपल्स बैठे हुए मुस्कुरा रहे थे, हंस रहे थे, एक बुक साथ साथ पढ़ रहे थे. 1 मिनट को मैं रुका और मैंने सोचा ऐसा क्या है, ये खुश हैं और मैं जो कि इस पूरे एजुकेशन एनवायरनमेंट का बॉस हूँ वो दुखी हूँ. इतना अंतर कैसे है? देन आई रियलाइज्ड the gap is not in me being the boss and they being the student. Gap is they are in the learning environment and I am in the controlling environment. I went back next day, enrolled myself into a PhD program and the things changed for me. मैं भी स्टूडेंट बन गया उसी एनवायरनमेंट जिसको मैं कंट्रोल कर रहा था. एक तीसरे नज़रिए से देखने लगा और बहुत इन्जॉय करने लगा. सो मच सो दैट आई डिड माई PhD in medical education, health professional education, which was first in the country as a dean. फ्रेंड्स, इस बात को समझिए, जब लर्निंग इज़ अ सर्वाइवल किट, जब आप मुश्किल में हो तो जब आप सीखते हैं वहाँ से तो आपका सर्वाइवल किट है. जब मेरे लिए लर्निंग डिफ़िकल्टी थी तो टीचिंग आई, और जब टीचिंग डिफ़िकल्टी थी तो लर्निंग आई. सो यू नीड टू लुक नॉट फ्रॉम वन एंगल द सेम थिंग 360 डिग्रीज एंड यू विल राइज अगेन. यू विल नॉट बी बॉदर्ड अबाउट फेलियर्स. फाइनली 10 साल पहले my body gave up. So in the morning at 4 AM I had a very severe heart attack. I was taken to the hospital, तीनों arteries blocked, taken to the bypass for bypass surgery. उसी कॉरिडोर से जिस कॉरिडोर को मैंने बनवाया, उसी ऑपरेशन थिएटर में जहाँ इक्विपमेंट मैंने खरीदे, और उन्हीं स्टूडेंट्स वही स्टूडेंट्स ऑपरेट करने वाले थे जिनको मैंने पढ़ाया. कैन यू इमेजिन दिस? Between my life and death stood the people whom I had nurtured. Never hesitate to nurture anything. Stood the systems whom I have nurtured to the extent that I can build a trust out of it for myself, my own life. So build a system around you, nurture yourself, the people around you, so much so that you can trust with your life for them. And then you will see, आज सुबह से हम एम्पैथी की बात कर रहे थे. एम्पैथी केवल कहने से नहीं आती, केवल फील करने से नहीं आती. असली एम्पैथी इमीडिएट एक्शन से आती है. सो इफ यू कैन ट्रस्ट योर सेल्फ टू दिस एनवायरनमेंट विच यू हैव क्रिएटेड, देन दैट इज द रियल एम्पैथी. लास्ट एग्जाम्पल बताऊंगा. सब कुछ हो गया. आई वॉज ऑलमोस्ट नाउ 56-57 ईयर्स. आई वॉज थिंकिंग ऑफ गुड रिटायरमेंट.
बढ़िया फार्म हाउस, बढ़िया घर, बढ़िया बच्चे, एवरीथिंग गोइंग गुड. एंड देन सडनली वन डे कॉल कम्स, आप केली में वाइस चांसलर बनेंगे क्या? सी, आई एम ए गाय फ्रॉम मध्य प्रदेश, फ्रॉम ग्वालियर, working in Maharashtra for last 25 years, and now at this age, should I go to Karnataka, restart my life? Lot of things are at stake. I went to my wife. My wife, she is an obstetrician, gynecologist, IVF समझते हैं आप, जो बच्चे बनाते हैं डॉक्टर्स. So she has given, assisted to give almost 500 babies birth. 10-20 साल से उसने अपना पूरा करियर लगाया हुआ है. I went to her. दीप्ति क्या सोचती हो? Should I take up this job? And without hesitation she said, go. And I went. I went with a learning that, see, आज हम लोग ना बहुत हेजिटेट करते किसी से सपोर्ट लेने में, किसी का सेक्रीफाइस एक्सेप्ट करने में हेजिटेशन है हम लोगों को. पापा के पास जाएंगे नहीं और मन मन में घुड़ियाएंगे, बताएंगे नहीं, परेशान हो जाएंगे पापा. मम्मी को नहीं बताएंगे, परेशान हो जाएंगी मम्मी. फ्रेंड्स को नहीं बताएंगे, परेशान हो जाएंगी फ्रेंड्स. और सुबह स्वामी जी ने बोला था छत पे जाके छलांग लगा देना, फिर वही होगा. पर जब छत पे जा रहे हो तो जो भी रूम बीच में पड़ता हो उस पर नॉक करना, उसको बोलना यार मैं सुसाइड करने जा रहा हूँ, मेरे को हेल्प करते क्या, मेरी ये प्रॉब्लम है. आप कभी छत तक पहुँचोगे ही नहीं, वहीं रोक लिए जाओगे. एक गिलास ठंडा पानी पीना और फिर देखना वो सपोर्ट कितने काम का है. सो डोंट हेजिटेट टू टेक सपोर्ट फ्रॉम एनीवन. इट्स नॉट ए सेक्रीफाइस. एक्सेप्ट दैट सेक्रीफाइस विथ फील ह्यूमिलिटी एंड ग्रेस, बट विथ अ प्रॉमिस. अगर जब तुम्हारे पास ऐसा चांस आएगा ना, अपॉर्चुनिटी, तो तुम भी किसी के लिए डिट्टो सेम बिना हेजिटेशन के करोगे, वो वही आदमी हो या कोई दूसरा हो. इफ यू कीप दिस टू योर प्रॉमिस टू योर सेल्फ टूडे, देन डोंट हेजिटेट टू आस्क फॉर योर मनी फ्रॉम समबडी हु इज़ रेडी टू गिव यू मनी. उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तुम्हारे एजुकेशन स्पॉन्सर कर सकता है इसीलिए कर रहा है, अपना पैसा काट के कोई तुम्हें नहीं देगा. बट विथ अ प्रॉमिस दैट यू विल डू सेम वंस यू आर एजुकेटेड टू समबडी एल्स हु नीड्स इट. So friends, before I end, after decades of loss and leadership, I would like to say few things. To rise again, you need to be resilient, no doubt about it. But softly also, if you are rising, you are rising. You need to share everything which you can, particularly knowledge. It empowers yourself hugely. You need to practice before performance. आज भी जितने भी स्पीकर्स यहाँ आए हैं, हम सब ने अधिकतर रैंडमली ऐसा नहीं बोल रहे हैं, हम कल तक टेंडमली यहाँ प्रैक्टिस कर रहे थे. लर्निंग री एनर्जाइजेस यू. कभी भी बर्नआउट महसूस हो, एक छोटे से 2 साल के बच्चे को साथ में लेके बैठना, जब हटोगे ना वहाँ से, वो तुमको इतना कुछ सिखा चुका होगा कि तुम्हें मज़ा आने लगेगा ज़िंदगी का. सो डोंट हेजिटेट टू रीलर्न. नर्चर पीपल along the way always. Don't see them as a competitors. See them as a complementary things. Accept the support rendered without hesitation with a promise to give it back. So friends, opposite of success is refusal to rise, not failure. Failure तो सबका आएगा और होएगा ही. But if you refuse to rise, that is what the opposite of success is. But if you rise again, success will be yours always. Remember this. At the end, my final thoughts are, me being a very ordinary person, world needs more resilient humans who are ready to rise. आज भी आप देख रहे हैं पॉलिटिकल लीडरशिप ने कितनी क्राइसिस पैदा करके रखी हुई है अक्रॉस. इट इज़ द ordinary human, strong ordinary human who is the greatest asset on the planet of Earth. And we and you being that, जिसके स्ट्रॉन्ग शोल्डर्स पे सेलिब्रिटीज़ खड़े हो सकते हैं, वो शोल्डर्स बनना है हमको. एंड टेक प्राइड इन दैट. थैंक यू सो मच फॉर बीइंग.